नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा को मारी टक्कर, 9 वर्ष के मासूम की हुई मौत। लुधियाना में रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, मांगी 5 करोड़ की फिरौती। फरीदकोट में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा, पिस्ता के नाम पर रंगीन मूंगफली हो रही थी इस्तेमाल। और अब हलचल विस्तार से। नाभा में दोपहर करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 9 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। नाभा की जसपाल कॉलोनी का रहने वाला निहाल तीसरी कक्षा का छात्र था। बच्चा अपनी मां के साथ ननिहाल से घर जा रहा था कि अचानक स्पेयर पार्ट से भरे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसकी एक्टिवा को टक्कर मारी। नतीजन मां कीचड़ वाले इलाके में गिर गई और मासूम बच्चा निहाल ट्रॉली के नीचे आ गया। जब तक ट्रॉली रुकी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसपास के लोगों ने फिर भी बच्चे को ट्रॉली के नीचे से निकालने की बहुत कोशिश की और उसे सिविल अस्पताल नाभा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत से मां सदमे में थी और अस्पताल में रो रो कर उसका बुरा हाल था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उक्त ट्राला बहुत तेज गति से आ रहा था, जिसने पहले एक दो गाड़ियों को टक्कर मारी थी और होटल सरप्रिया के पास ट्राला चालक ने अचानक कट मार दिया, जिससे बच्चे के साथ जा रही मां की एक्टिवा ट्राले से टकरा गई। उन्होंने कहा कि हालांकि बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी वे मां को तसल्ली देने के लिए उसे पटियाला ले गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर नाभा पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ਸਪਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਰੇ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੁਝ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਬੱਚਾ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਾਕਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 1%। ਮਾਂ ਬਚ ਗਈ? ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਬੱਚਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਪਤਾ 1% ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਸਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਪ੍ਰੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ? ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਢਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜੀ ਮੌਕੇ? ड्राइवर देखते हैं मौके पे जाके सर उत्थे पहुँच गया होते। जो हमारे पास पेशेंट 12:15 के अराउंड आया था। बच्चा आते ही मैंने इनको डिक्लेयर कर दिया था, बच्चा नहीं था, कैरोटिड पल्स भी नहीं मिली हमें, मतलब क्लियर कर दिया था हमने। फिर भी हमने ट्राई किया चलो CPR दे के देख लेते हैं, बट ECG निकाली तो उनको हमने फिर क्लियरली डिक्लेयर कर दिया, बट वो अपनी संतुष्टि के लिए लेके गए हैं। बच्चे का नाम निहाल है और पिता का नाम नवीन है, जसपाल कॉलोनी से, अराउंड 10 ईयर ओल्ड है। तो एक्सीडेंट हेड इंजरी से मोस्टली रीज़न है। लुधियाना में फौज से रिटायर्ड होने के बाद रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले नंदलाल के घर देर रात को गैंगस्टरों की तरफ से हवाई फायर किए गए।
कुछ गोलियां उनके घर की दीवारों पर चलाई गई। एक कारतूस वहीं गिर गया। जाते समय आरोपी घर के बाहर एक नोट चिपका गए जिसमें कौशल चौधरी ग्रुप का नाम लिखा गया और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। गोलियां चलने की आवाज सुन आसपास के लोग डर गए और घरों से बाहर नहीं निकले। जब आरोपी फरार हो गए तो नंदलाल ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी और थाना सदर की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करने शुरू किए ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके। नंदलाल 2006 में सेना से सूबेदार पद से रिटायर हुए थे और अब लुधियाना में रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। उनके 2 बेटे हैं जिनमें एक डॉक्टर और दूसरा बैंक मैनेजर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना शनिवार रात 3 बजे की है। बदमाश बाइक पर सवार थे और लोहारा पुल की दिशा से आए थे। फायरिंग के बाद वे जीएनई कॉलेज की ओर भाग निकले। मैं रिटायर्ड आर्मी पर्सन हूँ और अभी फ़िलहाल कोई प्रॉपर्टी का काम करता हूँ माड़ा मोटा। ठीक है, क्या हुआ, कब हुआ और किन लोगों ये ने? रात को करीबन 3 बजे के आसपास फायरिंग हुई। 2 आदमी थे, मोटरसाइकिल पे सवार थे, हेलमेट उनका लगा हुआ था। जाते हुए देखा हमने, फायरिंग के समय नहीं देखा, उस समय अंदर सो रहे थे। जब आवाज़ आई तो हमने सोचा पटाखे जल रहे हैं, बाहर देखा तो शीशा टूट रहा था। शीशा टूटा तो पता लगा कि छेद हो रहे थे कि गोलियां लगी हुई हैं। फिर देखा तो वो दौड़ते हुए जा रहे थे। जब नीचे गए तो 1-2 पर्ची मिली जिसमें लिखा हुआ था क्या लिखा था? उसका कैलाश चौधरी ग्रुप 5 करोड़, क्या लिखा था? 5 करोड़ रुपया कैलाश चौधरी ग्रुप। दूसरी में लिखा हुआ था कैलाश चौधरी ग्रुप 5 करोड़। पहले वाले में किरड लिखा था, दूसरे में CR लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि 5 करोड़ बोल रहे हैं वो पर्ची देखी। फिर नीचे गए तो वहाँ खोल वगैरह पड़े हुए थे, 15 खोल थे, एक जिंदा कारतूस था। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया 112 नंबर पे, 100 नंबर पे पुलिस टीमें आई। गुरदेव सिंह जी साहब आए, ACP, SHO आया, चौकी इंचार्ज मराठो आए, PCR आई। उन्होंने जो बनती कार्रवाई थी वो की। सुबह FIR को दर्ज। लेकर पहले भी कोई धमकी आपको आई? इससे पहले कोई धमकी नहीं आई आज तक, ना ही कोई फ़ोन आया, ना ही कोई धमकी आई, ना ही कभी कोई फायरिंग हुआ। सर कितनी गोलियां चली हैं? 16 गोलियाँ थी। 16 गोली 16 तो मिल गई, कॉल मिले हैं। 16 के 15 के खोल, एक जिंदा। ओके हो सकता है कहीं आसे पासे और भी पड़ी हो। सर, जैसे कैलाश चौधरी पर्ची पे लिखा था, तो आप जैसे बता रहे हो कि रिटायर्ड उसमें भी हो, तो उसमें जी। भी कोई ऐसा कोई केस वगैरह था? नहीं नहीं, ऐसा कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। कैलाश चौधरी का ये नहीं पता कि कहाँ का है, कौन से ग्रुप से। हमारा उसमें फौजी आदमी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हम तो देश की सेवा करने वाले बंदे हैं, वो हमारी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी है? पुलिस कंप्लेंट कर दी है, FIR हो गई है। जी ठीक है। और पुलिस को कोई अपनी सुरक्षा के लिए भी आपने एप्लीकेशन? सुरक्षा के लिए मैंने बोला है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पुलिस से कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता है 2-3 बंदे पुलिस के दिए जाएं सुरक्षा के लिए। जब हालात शांत हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वापस ले सकते। जिस वक्त ये गोली कांड हुआ तब घर में कौन कौन मौजूद थे? मैं था, एक मेरा रिलेटिव था। परिवार भी रहता है कि अकेले? परिवार अभी जयपुर गया हुआ है दीपावली पे, यहाँ है नहीं, राजस्थान गया। नुकसान तो भी शीशे वगैरह टूट गए, 10-20 हज़ार रुपये का हो ही गया। शीशे की? कोई जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं, जान माल की कोई हानि नहीं हुई, सिर्फ शीशे टूटे हैं। तो जाते हुए आपने देखा तो कितने की उम्र के जो लग रहे थे? एटलीस्ट 25-30 के बीच में ही थे, पतले पतले 2 लड़के थे। किस पे आए थे? मोटरसाइकिल थी, कौन ठीक है। सी मोटरसाइकिल पता? शायद स्प्लेंडर होगी। ठीक है, और हेलमेट डाला हुआ? दोनों के हेलमेट थे। ठीक है, और किस दो नंबर प्लेट नहीं दिख पाई, अंधेरा था। कितनी गोलियां चली हैं? 17, 16 16 गोलियां। कोई सर सीसीटीवी वगैरह भी? CCTV आई है, वो उधर आगे स्कूल है, स्कूल में CCTV आई है। वो मोटरसाइकिल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं 2 बंदे मौके पे। बिल्कुल, पुलिस 10 मिनट में आ गए, पूरी टीमें। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? अभी इन्वेस्टिगेशन तो FIR दर्ज हुई है, आगे पुलिस अपने लेवल पे कर रही है। कल देर शाम पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से फरीदकोट के एक रिहायशी इलाके में 2 मंजिला मकान में चल रही सोन पापड़ी और बर्फी की फैक्ट्री पर छापा मारा और भारी मात्रा में सोन पापड़ी, कच्चा खोया, हरी मूंगफली के दाने, बर्फी, गली सड़ी
मिठाइयाँ राजस्थान के प्रसिद्ध बीकानेरी सोन पापड़ी ब्रांड के डिब्बे और इन डिब्बों में पैक की जा रही सोन पापड़ी बरामद की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जब्त की गई मिठाइयों के नमूने मौके पर ही भर लिए गए और बाकी मिठाइयों को सील कर दिया गया। पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को एक गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने फैक्ट्री की जांच की। उन्होंने बताया कि यहाँ फैक्ट्री में किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं रखी जा रही थी। यहाँ से भारी मात्रा में सोन पापड़ी और बर्फी मिली है, जिसके नमूने भरे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ मिली रंगीन मूंगफली की भी जांच की जा रही है। राजस्थान की प्रसिद्ध बीकानेरी सोन पापड़ी का रैपर मिलने और उसी ब्रांड नाम से सोन पापड़ी की पैकेजिंग मिलने के बारे में उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरविंदर सिंह ने कहा कि वे पुलिस दल के साथ आए और जांच की तो यहाँ काफी अनियमितताएं पाई गई। उन्होंने कहा कि मिली मिठाइयों के नमूने भर लिए गए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जब्त किया गया सारा माल सील कर दिया गया है। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਿਠਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸਐਸਪੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਨਮਕੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬੇ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ बीकानेर ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਠਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बीकानेर ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਛ ਦਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਹਰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਸਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੀਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਨਹਾਈਜੈਨਿਕ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸਿਸ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ? ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਬਿਲकुल नहीं दिखा, पर मिठाई सारी दूध दी। राजस्थान के जैसलमेर जैसा हादसा यूपी में भी हुआ। बुलंदशहर में NH 34 पर दौड़ती बस आग का गोला बन गई। राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। वक्त रहते यात्री इस बस से उतरने में सफल रहे। जिस वक्त
बस में आग लगी उसी समय उसमें 70 से 80 यात्री सवार थे। ये बस दादरी से हरदोई जा रही थी। यात्रियों का कहना था कि बस की हालत बहुत ही खराब थी। ओवरहीटिंग की वजह से गाड़ी को एक दो जगह रोका भी गया, लेकिन बस की मरम्मत करने की बजाय उसे फिर चलाया गया और इंजन गर्म होने से बस में आग लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ यात्रियों ने चलती बस से कूदकर जान बचाई। ये बस बिना फिटनेस के नेशनल हाईवे 34 पर दौड़ रही थी। इस मामले में आरटीओ विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान जा सकती थी। हमारे पास अभी 9:15 के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक UP 30 8661 एक बस थी जिसमें आग लगने की सूचना हमारे को प्राप्त हुई। ये बस संभवतः दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रही थी और इसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। कोई भी इंजरी नहीं है, ना ही कोई घायल है और आग पे काबू पा लिया गया है। दीपावली पर्व के मद्देनजर जालंधर स्थित देशभक्त यादगार हॉल में 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक 4 दिवसीय जालंधर ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जानी मानी कंपनियों की ओर से अपने अपने प्रोडक्ट्स शोकेस किए गए। इसी दौरान प्रसिद्ध ह्यूज एंड शेड्स होम फर्निशिंग ब्रांड की तरफ से भी अपनी भागीदारी निभाई गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए ह्यूज एंड शेड्स होम फर्निशिंग ब्रांड के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय अग्रवाल ने बताया कि उनकी फर्म की ओर से इस एग्जीबिशन में कई प्रकार के होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स जैसे ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, कंफर्ट्स, डोरमैट्स, किचन रनर्स इत्यादि उपलब्ध करवाए गए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की शगुन की रस्म के दौरान भी ह्यूज एंड शेड्स की प्रीमियम क्लाउड ल्यूक्स क्वालिटी के कंबल भेजने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जो कि उनके लिए बेहद ही गर्व की बात है। गौरतलब रहे कि अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा और लविश ओबराई की शादी वर्ष 2025 की बहुत ही प्रसिद्ध एवं सुर्खियां बटोरने वाली रही, जिसमें बॉलीवुड, बॉलीवुड, क्रिकेट और राजनीति जगत से जुड़ी प्रसिद्ध हस्तियों ने शिरकत कर नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी। तो वहीं एमडी अजय अग्रवाल ने ये भी बताया कि इस एग्जीबिशन में शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर विजिट किया और जमकर खरीदारी भी की। अजय अग्रवाल ने बताया कि ग्राहक उनकी वेबसाइट hughesandshades.com और अमेजन की वेबसाइट पर जाकर भी उनके प्रोडक्ट्स उचित दामों पर ऑर्डर कर सकते हैं। इस दौरान सभी देशवासियों को दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं भी दी गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਹੈ। ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਹੋਮ ਫਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਈਵਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੰਫਰਟਰਸ ਦੀ, ਬਲੈਂਕਟਸ ਦੀ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਵਿਦ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੰਫਰਟ ਐਟ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟੋ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਖੂਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆ। ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਜਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਮ ਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟਾਲਸ ਹੀ ਨਾਲ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਐਫਰਟ ਹੈ और मैं बहुत धन्यवादी हूँ जी। अजय अग्रवाल, समाज सेवी जलंधर। श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन में नीमा जालंधर की ओर से डॉक्टर SP डालिया की अध्यक्षता में भगवान धन्वंतरी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें उनकी पत्नी सविता डालिया विशेष रूप से उपस्थित हुए।
सर्वप्रथम धन्वंतरी पूजन के बाद हवन यज्ञ पूर्ण विधि पूर्वक किया गया। तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इसी दौरान डॉक्टर डालिया और उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जग्गी को गत दिनों आयोजित राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। कैशियर डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने खान पान की व्यवस्था को बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव धवन, डॉक्टर मनीष मेहता, डॉक्टर विपुल कक्कड़, डॉक्टर के.एस. राणा, डॉक्टर अश्विनी नरूला, डॉक्टर नीरज कालड़ा, डॉक्टर सुमित कल्याण, डॉक्टर नरेश कुंबले शर्मा, डॉक्टर नीरज सहगल, डॉक्टर अश्विनी महेंद्रू, डॉक्टर चरणजीत, डॉक्टर अविनाश सौंधी, डॉक्टर दयाल अरोड़ा, डॉक्टर मोहिंदर निर्मल, डॉक्टर रीना कक्कड़, डॉक्टर तुलिका गुप्ता, डॉक्टर अनु कक्कड़ भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.पी. डालिया, प्रेजिडेंट ਨੀਮਾ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਧਨਵੰਤਰੀ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹਵਨ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NIMA ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੀਮਾ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੀਮਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨਵੰਤਰੀ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੀਮਾ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਧਨਵੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਨੀਮਾ, जय धन्वंतरी। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नजदीक गाखला पुल जालंधर की ओर से हनुमान जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम मां बंगलामुखी जी का हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह षोडशोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाईं। जिसके बाद हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बालाजी की चौकी भी करवाई गई, जिसमें मेयर विनीत धीर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर हाजिरी लगाई। जिसके बाद मेयर विनीत धीर ने मंदिर सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और हनुमान जन्मोत्सव की बधाई दी। इस दौरान मेयर विनीत धीर सहित सभी गणमान्यों को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान बालाजी के स्वरूपों के दर्शन कर भक्तों ने अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर चंदन, आदित्य भसीन, गीतेश जुनेजा, अमरवेश कपूर, नीरज कपूर, मुकेश चौधरी, मुनीश लाहौरिया, विजय हांडा, अनिल चड्डा, साहिल शर्मा, प्रदीप, कमल, अविनाश गौतम सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नाभा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा को मारी टक्कर, 9 वर्ष के मासूम की हुई मौत। लुधियाना में रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, मांगी 5 करोड़ की फिरौती। फरीदकोट में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा, पिस्ता के नाम पर रंगीन मूंगफली हो रही थी इस्तेमाल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।